ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿ ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
खंडे बाटी की पहुल लैनी जरूरी है, हरेक सिख वास्ते जरूरी है, क्योंकि एडमिशन होवेगा तां ही असी स्टडी करांगे, तां ही असी पढ़ाई करांगे। पर भगत कबीर जी कहते हैं कि जेकर कि गुरु वाला बनना है अपने मन के विचों विकारां नूं खत्म करना पवेगा। जे करके स्टडी करांगे, विकारां नूं खत्म करांगे, गुरु जी के दसे ज्ञान के मुताबिक अपने जीवन नूं जीवांगे तां असी गुरु वाले बन सकते हाँ। खालसा साजना दिवस, असल दे विच खालसा शब्द जिहड़ा है ये अरबी अते फारसी दोहां भाषावां दे विच मिलदा है। वो दोहां भाषावां दे विच खालसा शब्द का अर्थ जिहड़ा है वो वखरा वखरा है। अरबी भाषा दे विच ते फारसी भाषा दे विच, अरबी दे विच खालसा का अर्थ है कि जिस दे अंदर कोई विकार नहीं, भाव कि जिहदा अर्थ है शुद्ध, जिस दे अंदर कोई किसी तरह की जिहड़ी है वो कोई मैल नहीं। ते फारसी भाषा दे विच खालसा का अर्थ है आजाद हस्ती का मालक, भाव कि जो किसी की गुलामी नहीं। सब तो पहला खालसा शब्द असी भगत कबीर जी की पावन बाणी दे विच पढ़ते हाँ, कहो कबीर जन पए खालसे प्रेम भगत जे जानी, कि असल दे विच वो खालसा है जिसने गुरु जी की, रब जी की प्रेमा भगती नूं जान लिया है। भाव कि जिस दे अंदर गुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, समुची कायनात दे विच वसदे जीवां के प्रति प्रेम पैदा हो जावे, ते अक्सर दे विच सतगुरु जी कहते हैं कि गुरबाणी कहती है कि वो असल दे विच खालसा है जिस दे अंदर प्रेम पैदा हो जावे। अक्सर असी वेखदे हाँ जदों धर्म की गल आउंदी है, धर्म की आरंभता ही जिहड़ी है वो है तरस तो, दया तो। दया तो ही धर्म की आरंभता है। बेनती करदे हां केवल गल्लां धर्म दीयां करन दे नाल या पहनावा धर्म दा पाउण दे नाल कदे धर्मी नहीं जे बनिया जा सकदा। धर्मी केवल वो है जिस दे अंदर दया होवेगी, तरस होवेगी। इतिहास दे विच पढ़दे हां जदों गुरु नानक पातशाह जी जनेऊ पाउण की रस्म अदा की जाती है, पंडित जी आखते हैं कि यह जनेऊ पाउणा करो। गुरु नानक पातशाह जी पूछते हैं कि इस जनेऊ नूं पाउण दे नाल की होवेगा। पंडित जी आखते हैं तुसीं पक्के धर्मी बन जावोगे, तुहाडा धर्म दे विच प्रवेश हो जाएगा। तो फिर सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी पंडित जी नूं आखते हैं कि यह जनेऊ जिहड़ा है वो मेरी भैन नूं पाउणा करो। फिर पंडित आखदा है कि इस जनेऊ नूं केवल ते केवल मर्द जिहड़ा है वो पा सकता है, इस्त्री जिहड़ी है इस जनेऊ नूं पाऊ नहीं जे सकदी। इत्थे बेनती करदे हां गुरु ने साडे उत्ते इन्नी कोई बख्शिश रहमत की है। इस्लाम धर्म के अंदर मस्जिद के अंदर केवल ते केवल पुरुष जा सकता है, स्त्री नहीं जे जा सकती। और हिंदू धर्म के अंदर जनेऊ केवल पुरुष पा सकता है, स्त्री कदे भी जनेऊ नहीं जे पा सकती। पर जिहड़ा मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, गुरु नानक पातशाह जी ने अजिहा धर्म जिहड़ा है आरंभिया है कि जिस दे विच स्त्री अते पुरुष नूं बराबर का दर्जा है। स्त्री जिहड़ी है वो अमृत भी छक सकती है, पंज प्यारियां दे विच हाजरी भी भर सकती है, आप अखंड पाठ साहब भी कर सकती है, सहज पाठ भी कर सकती है। ते अजिहे धर्म की आरंभता गुरु नानक पातशाह जी ने की है। ते पंडित नूं आखिया कि पंडित जी इस जनेऊ पाउण दे नाल कदे धर्मी नहीं जे बनिया जा सकता। जे करके असल धर्मी बनना है दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि पंडित जी जे करके असल धर्मी बनना है तो दया का जिहड़ा है वो सूतक पाना पवेगा, जिहड़ा ये जनेऊ जिहड़ा है वो पाना पवेगा। कि दया का जनेऊ पाउण दे नाल ही भाव धर्मी बनिया जा सकता है। जिस दे अंदर दया नहीं, तरस नहीं, जिस दे अंदर कठोरपना है, सच करके जानियो वो कदे धर्मी नहीं जे हो सकता। दूजी बेनती करदे हां की कारण सी कि कलगीधर पातशाह जी ने खालसा साजना दिवस या खालसे नूं प्रगट करने वास्ते कह लीए कि एक विसाख का दिन ही क्यों चुनिया सी। क्योंकि अक्सर असी किताबां दे विच पढ़दे हां या कटक के विसाख, करम सिंह हिस्टोरियन की एक किताब है उसनूं पढ़ के वेखिए। कटक के विसाख किताब का नाम है। कलगीधर पातशाह जी ने एक विसाख नूं क्यों चुनिया सी? क्योंकि एक विसाख नूं जदों असी किताबां दे विच अक्सर पढ़ाई के टाइम पढ़ते हाँ कि गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश जिहड़ा है वो 14 अप्रैल 1469 नूं ननकाना साहिब की पावन धरती ते होया है। कि गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश वाला दिन जिहड़ा सी
वो 14 अप्रैल भाव की 1 विसाख सी। और कलगीधर पातशाह जी ने यही कारण सी कि खालसा साजना दिवस खालसे नूं प्रगट करने वास्ते 1 विसाख का दिन इस करके चुनिया सी, क्योंकि कलगीधर पातशाह जी चाहते सन कि जिस दिन मैं इस खालसे नूं प्रगट करा वो सब तो पहला अगे जो है वो गुरु नानक पातशाह जी नूं रखना चाहते सन। 1 विसाख नूं गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी मनाया जाता है। अक्सर भावें असी नवंबर या दिसंबर के तकरीबन असी मनाने हाँ, पर जो असी इतिहासक विचारां नूं या इतिहासक किताबां नूं असी पढ़ांगे पता लगेगा कि असल दे विच इतिहास की है। खैर, कलगीधर पातशाह जी ने खालसा जिहड़ा इह साजिया है, इसका आखिरी अर्थ है कि जिसकी गुलामी कोई नहीं, भाव कि जो किसी के अधीन नहीं। बादशाह ने एक जमीन का टुकड़ा जिहड़ा एक जमीन के टुकड़े के 4 हिस्से किए सन, एक हिस्से का नाम भी जिहड़ा है वो खालसा रखिया होया सी। कारण कि हरेक हिस्से के उत्ते हरेक जमीन के टुकड़े के उत्ते कोई ना कोई कर भी सी, टैक्स भी सी, कोई किसी के अधीन सी, कोई किसी के अधीन सी। और एक टुकड़ा वो सी जिहड़ा केवल ते बादशाह के अधीन सी, ना उस जमीन के टुकड़े ते कोई कर सी। भाव खालसा वो है जो किसी के अधीन नहीं, केवल अकाल पुरख परमेश्वर के अधीन रहिंदा है। सीधा संपर्क जिहड़ा है वो अकाल पुरख दे नाल रखदा है, वो किसी देवी देवता दे नाल नहीं। ते दूजा खालसे का अर्थ है शुद्ध, कि जिसके अंदर कोई विकार नहीं, किसी दे जिसके अंदर कोई मैल नहीं, जिसके अंदर पवित्रता है, शुद्धता है, असल दे विच वो है खालसा। कलगीधर पातशाह जी ने जदों एक खालसा साजिया सी, इस तो पहला मसंदा की जिहड़ी है वो प्रथा चली हुई सी कि मसंद जिहड़े ने वो संगतां दे कोलों दसवंध इकट्ठा कर करके गुरु घर का प्रबंध चलाउंदे सन। कि जदों कलगीधर पातशाह जी नूं संगतां ने आके बेनती की कि सतगुरु पातशाह जी, क्योंकि कुछ को मसंद वो सन जिहड़े करप्ट हो चुके सन, संगतां दे नाल धक्काबाजी भी करते सन। पर जदों कलगीधर पातशाह जी नूं पता लगता है तो सतगुरु पातशाह जी खालसा साजदे ने कि अज तो बाद कि मसंद जिहड़ा है वो विचोला नहीं, जिन्हां दा संबंध खालसे का संबंध जिहड़ा है वो केवल सीधा गुरु दे नाल है। और अक्सर असी एक शब्द आम तौर पर सुनते हाँ कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने न्यारा खालसा साजिया सी कि जिहड़ा सब तो न्यारा है। केवल ते केवल असी अमृत की पोल प्राप्त करके और 5 कार रूपी वर्दी नूं धारण करके जे करके असी अपने धर्म के कर्मां नूं असी बदलांगे नहीं, चेंज नहीं करांगे, सच करके जानियो न्यारा खालसा असी कह नहीं दे सकते। न्यारा क्यों है? क्योंकि अक्सर संसार दे विच कोई दरखतां की पूजा करता सी, कोई मूर्तियां नूं पूजदा सी, कोई बुत्तां नूं पूजदा सी, कोई पानी की पूजा करता सी, कोई सूरज देवता की पूजा करता सी। पर जदों न्यारा खालसा कलगीधर पातशाह जी ने साजिया ते इस खालसे का संबंध केवल ते केवल अकाल पुरख दे नाल सी, क्योंकि जैसा सेवा तैसा होवे। असी केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पूजदे हाँ, इन्हां नूं पढ़दे हाँ कि जिहड़ा निर्गुण स्वरूप नूं, क्योंकि जदों असी मूल मंत्र पढ़दे हाँ, मूल मंत्र दे विच पढ़दे हाँ कि वो गुरु अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा है वो निर्वैर है, अकाल है, निरभौ है, उन्हों किसी का कोई डर नहीं, उहदा किसी दे नाल कोई वैर नहीं। क्योंकि गुरबाणी कहती है जैसा सेवा तैसा होवे, जिहो जिहा असी सेवना करांगे इहो जिहा सुभाव मनुख दा बंदे दा जिहड़ा है वो बन जाता है। ते जदों असी निर्वैर गुरु नूं परमेश्वर नूं पूजना करांगे ते असी निर्वैर हो जावांगे। जदों निरभौ नूं सेवांगे ते निरभौ हो जावांगे, भाव अंदरों सारा डर जिहड़ा है वो खत्म हो जाएगा। सो सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने अज दे दिन एक खालसा जिहड़ा है ये प्रगट किया है, साजिया है। सो दास वालों दोबारा फिर समुची संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। इन्नी कुछ सेवा प्रवान होईयां भुलां दीयां खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।